Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Yes, we are completed that syllabus. I was covered total important questions from each and every chapter. So once again, I am revising all that which I was explaining in previous classes. So once again, I am repeating all these which are important for your examination. In the 11th question, there are two questions are there which are important. First one is the Bragg's equation. And the second question from this is, what are semiconductors? And write their types. Now, I think these are the two very easy questions among them. In दोनों में से you will get the one question definitely, or going to come this one question from this. तो ये दो क्वेश्चन से क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में रहता है, ये दो पक्के याद कर लीजिए आप, चाहे तो फिर भी एक बार रिवाइज करो बोले तो करता हूँ मैं। ये ब्रैग्स इक्वेशन तो बहुत बार प्रैक्टिस करें, तो ये सेमीकंडक्टर्स के बारे में एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूँ मैं। सेमीकंडक्टर्स, द सब्सटेंसेस which are having poor conductivity, in which the gap between the valency band and conductive band is in between the insulators and conductors. क्या मतलब है इसका? इंसुलेटर्स में गैप जो है थोड़ा ज्यादा है, सेमीकंडक्टर्स में गैप थोड़ा कम है, और कंडक्टर्स में ये वैलेंसी बैंड और कंडक्टिव बैंड दोनों के बीच में गैप बिल्कुल कम रहता। तो दीज आर द कंडक्टर्स, दीज आर द सेमीकंडक्टर्स, दीज आर द इंसुलेटर्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी अच्छा पास होती। जो सब्सटेंस में ये गैप अगर थोड़ा दरमियानी है तो दीज आर हैविंग पुअर कंडक्टिविटी, अपने से कम इलेक्ट्रिसिटी पास करने वालों को सेमीकंडक्टर्स बोल के बुलाते हैं। तो semiconductors are of how many types? Two types. First one is the intrinsic semiconductors. Second one is the extrinsic semiconductors. Intrinsic semiconductors are the substances whose conductivity is improved by means of heating. गर्म करके conductivity improve करते हैं, तो वैसे सब्सटेंसेस को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, substances whose conductivity is improved by means of the adding impurities. By adding the impurities, conductivity of the substance is increases. That type of the semiconductors are called as extrinsic semiconductors. So adding the impurities to the semiconductors is called as the doping process. Doping is of two types. We are adding two types of the materials. First one, third A group elements to these semiconductors. If third A group elements are added like the boron, aluminum, gallium, if these are added to the semiconductors like the germanium and silicon, this type of the doping is called as P type of doping. Another one is the N type of doping. If we are adding the fifth A group elements like the phosphorus, arsenic to these semiconductors like germanium and silicon to improve their conductivity, such type of the doping is called as the N type of doping. So इतना लिख दीजिए आप, बस हो जाता है ये सेमीकंडक्टर्स में। तो ब्रैग्स इक्वेशन के बारे में भी मालूम है आपको। ब्रैग्स इक्वेशन में आप क्या करना है भाई? When X-rays are incident on the surface of the metallic crystal in which atoms are arranged in a regular geometry, particular manner में atom arrange होके थे, ये first layer है, ये second layer है। When X-rays are incident on the surface of this metallic crystal, they are diffracted from the lattice points. Okay, this is the wave 1 diffracted from the first layer, and this is the wave 2 which is diffracted from second layer.
यहाँ पे ए बोल के डाल लीजिए, यहाँ पे बी डाल लीजिए, एक्सटेंड करके यहाँ पे यहाँ पे डी डाल लीजिए, यहाँ पे सी डाल लीजिए। ओके, नाउ देन द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लेयर्स इज डी। ये डिस्टेंस डी है। यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बना के यहाँ पे एक थीटा, यहाँ पे एक थीटा डाल लीजिए। तो ये डायग्राम है भाई ब्रैग्स इक्वेशन का। ये फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर है। Now then, when X-rays are incident on the surface of the metallic crystal, these X-rays are diffracted from the lattice points. If these two waves are in phase, if these two diffracted wave forms constructive interference, then these are said to be parallel waves. The extra distance traveled by the second wave, देखिए यहाँ से यहाँ तक सेम डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, बोले ऐसा याद रख लेना। एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रहा सेकेंड वेव से, कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, ये सी बी ले रहा हूँ, फिर बी डी ले रहा हूँ, इतना डिस्टेंस जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, दैट इज इक्वल टू दी एन लैम्बडा बोल के बताना। दैट इज द ब्रैग्स इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू दी ब्रैग्स, एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल बाय दी सेकेंड वेव फ्रॉम द फर्स्ट वेव, दैट इज सी बी प्लस बी डी इज इक्वल टू एन लैम्बडा। फ्रॉम द ट्रायंगल ऑफ सी बी क्या होता है ये थोड़ा ये देख लेना। एक ट्रायंगल निकालो, इसमें दो ट्रायंगल्स बना लेना, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर साइन थीटा। व्हाट इज द साइन थीटा ऑफ दिस ट्रायंगल? तो साइन थीटा इन दिस ट्रायंगल इज सी बी बाई ए बी। सो दिस इज द साइन थीटा ऑफ दिस ट्रायंगल। नाउ देन फिर उसके बाद में साइन थीटा इज इक्वल टू सी बी बाई, और ये बी की जगह मैं क्या ले रहा हूँ, डी ले रहा हूँ। देन व्हाट इज द सी बी एट हियर? सी बी इज इक्वल टू क्या बनता है? सी बी इज इक्वल टू डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। तो एक ट्रायंगल से ये आ गया। अभी नेक्स्ट, और एक इधर साइड का ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी से इसका साइन थीटा निकाल रहा हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू, चलिए व्हाट इज द साइन थीटा? बी डी बाई ए बी, यहां से फिर से वही ले रहा। नो देन फिर उसके बाद में साइन थीटा इज इक्वल टू बी डी बाई ए बी की जगह डी लिख रहा हूँ। नो बी डी इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे? डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। नो देन यहाँ पे देखिए सी बी इज इक्वल टू डी साइन थीटा एंड बी डी इज ऑल्सो इक्वल टू द डी साइन थीटा। d sin theta plus d sin theta is equal to n lambda. That means n lambda is equal to 2d sin theta. Okay, it is the Braggs equation. So these are the two important questions in the first chapter. Solid state के दो important questions है ये, इसी में से एग्जाम में आता दो, ये दो क्वेश्चन से एक ऐसे क्यों आता है इंशाल्लाह। अच्छा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। यू प्रैक्टिस दिस टू क्वेश्चंस, यू विल गेट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस टू क्वेश्चंस इंशाल्लाह। कैसा भी आता 100% ये दो क्वेश्चन से क्वेश्चन आता। अगर नहीं आया तो VSQ में व्हाट इज द शॉर्टकट इफेक्ट, फ्रैंकेल इफेक्ट बोल के पूछ रहा हूँ। आप प्रैक्टिस कर लीजिए आप शॉर्टकट इफेक्ट। व्हाट इज शॉर्टकट इफेक्ट? फिर एक बार बोल रहा हूँ, मेटालिक क्रिस्टल्स है ए बी और प्लस माइनस ले लो, प्लस माइनस समझाने में आसानी होती है। प्लस माइनस ओके, प्लस माइनस these are the atoms or ions are arranged in a regular geometry. I am taking this metallic crystal. In this metallic crystal, what happened means one cation and one anion. A pair is missing from its place. Okay, this type of the defect in which a pair is missing from its lattice point is called as Schottky defect. It is observed in ionic crystal in which coordination number is more. This is about the Schottky defect. Then what is the Frenkel defect? This is the Schottky defect. Schottky defect है ये, Frenkel defect है ये, Frenkel defect. So in this Frenkel defect देखिए डिस्प्लेसमेंट करना, एक एलिमेंट को अपनी जगह से दूसरी जगह डाल देना। ए बी ऐसा लिख लेना, एक लाइन में लिख लेना ए बी। One element is missing from its place and occupies in the inner cavity. उसकी जगह छोड़ के बीच की जगह में जाके बैठ जा रहा हो, तो ऐसा शिफ्ट होने को, ऐसा डिस्प्लेस होने को क्या बोल के बुलाते हैं आप?
फ्रिंकल डिफेक्ट बोलते हैं। सिंपल भाई, शिफ्टिंग और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वन एलिमेंट और वन एटम इज मिसिंग फ्रॉम इट्स प्लेस एंड ऑक्यूपाइज इन द इनर कैविटीज ऑफ द मेटालिक क्रिस्टल, दिस इज कॉल्ड एज द फ्रिंकल डिफेक्ट। इसको फ्रिंकल डिफेक्ट बोल के बुलाते हैं। So it is observed in the covalent crystal in which coordination number is less. Example ZNS है, AgCl है, examples ले सकते हैं आप। So this is about the Frankel defect and Schottky defect। ये important question है ये chapter में। फिर F center है, मेटालिक क्रिस्टल के अंदर एक एनायनिक साइट माइनस वाला साइट है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आके इसके अंदर ऑक्यूपाई हो जाता, ड्यू टू दैट क्रिस्टल गेट्स कलर्स, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोल के बुला रहे हैं बोले तो एफ सेंटर बोल के बुला रहे हैं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन द फर्स्ट चैप्टर, सॉलिड स्टेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये। तो ये तीन पढ़ लीजिए आप लोग, कौन से भाई वो, फर्स्ट वन सेमीकंडक्टर्स टाइप्स और ब्रैग्स इक्वेशन, फ्रिंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट, ये पढ़ लीजिए आप। इसमें से क्वेश्चन कैसा भी रहता, या तो 2 VSAQs आते ना तो 1 VSAQ आता है, इसका वेटेज 4 मार्क्स का है। दिस इज अबाउट द फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, और शॉर्ट में सॉल्यूशन का रिवीजन कर रहा हूँ मैं। सेकेंड चैप्टर है, दैट इज द 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ये सॉल्यूशन से, चैप्टर सॉल्यूशन, सेकेंड चैप्टर से आएगा सॉल्यूशन से। तो इन दिस चैप्टर विच आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स बेटा, कौन से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर, कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। फर्स्ट वन इज द मोलारिटी, डिफाइन मोलारिटी एंड इट्स प्रॉब्लम है। उसके बाद में मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, इसके रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है। फिर नाउ नेक्स्ट वन राउल्स लॉ, पॉजिटिव नेगेटिव डिविएशन, और देन थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूँ मैं। So molarity, mole fraction, these are the things which are used to express the concentration of the solution. What is the meaning of the concentration of the solution? See that in the solvent I am dissolving some amount of the solute add कर ले रहा हूँ, तो how much solute is present in this? That is known as the concentration of the solution. कितना solute, the amount of the solute present in this solution is known as, is nothing but the concentration of the solution. To give the concentration of the solution, these are the things which are used. First one is the molarity. 2 marks में भी आ सकता भाई। What is the molarity? बल्कि definition पूछता। Molarity is nothing but the number of moles of solute. The number of moles of solute present in the 1 liter of solution। 1 लीटर सोल्यूशन में मोल्स के सोल्यूट्स कितने हैं, ओके, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, दैट इज कॉल्ड एज द मोलारिटी। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलारिटी। इट इज रिटन विद द कैपिटल M, दैट इज द N by V in liters, ओके। N की जगह आप क्या करेंगे भाई, वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ले लेंगे, into 1 by V in liters आएगा फॉर्मूला। देन मोलारिटी इन मिलीलीटर्स करना है, तो वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट into 1000 by volume in milliliters। So this is the formula is used to calculate the molarity कैलकुलेट करने के आसान। इसके रिलेटेड के 2 या 3 प्रॉब्लम्स मैं कराया था, उसको एक बार रिवाइज कर लो, देखना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करना है, ओके। सो दिस इज अबाउट द मोलारिटी। और नेक्स्ट मोलालिटी किसको बोलते हैं, डेफिनेशन सेम वैसे रिपीट करना है। मोलालिटी में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रॉब्लम कराया था, वो जरा देख लीजिए आप। मोलालिटी मीन्स द नंबर ऑफ मोल्स of solute present in 1 kilogram, 1 kg of solvent, the number of moles of solute present in 1 kg of solvent is known as molality, ओके। क्या डिफरेंस है मोलारिटी में,
वहां पे वॉल्यूम लिया और यहाँ पे वेट ले रहा हूँ। यहाँ पे इफ आई एम टेकिंग द वेट of solvent, that is known as the molality, and it is the ideal method to express the concentration. Molality is written with the m, small m से लिखते भाई। so number of moles by weight in kilograms, कोई फॉर्मूला है तो लास्ट फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ मैं, weight by gram, molecular weight of the solute into 1000 by a in grams। ग्राम्स में कैलकुलेट करने का रहता है, ऐसा यूज कर लेना, ये फॉर्मूला यूज करना। प्रीवियस लास्ट एनुअल एग्जामिनेशन में, परसों एग्जाम में क्या आया था, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन बोल के पूछ रहा, ग्लूकोज सॉल्यूशन। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना है भाई। ये क्वेश्चन को कैसा करना है, मोलालिटी m इज इक्वल टू वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 बाय ए इन ग्राम्स, ये फॉर्मूला डाल लेके क्लियर से डाटा लिख लेना। यहाँ वेट हाउ मच इज गिवन, क्वेश्चन देखना है यहाँ पे, ये जो है वो वेट ऑफ सोल्यूट रहता है वो 10। ओके, नो नेक्स्ट ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कौन सा दिया भाई, ग्लूकोज दिया, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 180 लेना। और नेक्स्ट ए इन ग्राम्स है, ए इन ग्राम्स, ग्राम्स में सॉल्वेंट का वेट कितना है, 10% बोल रहा, तो इसका मतलब 90 ग्राम सॉल्वेंट है, 10 ग्राम सोल्यूट है बोले से, तो नीचे का और ऊपर का दोनों का मिला दिए तो 100 हो जाता। तो क्या करेंगे भाई, 100 में से आप 10 निकाल देंगे आप। ओके, वेट ऑफ सोल्यूट निकाल दिए तो वेट ऑफ सॉल्वेंट बचता, दैट इज 90। तो ये हो गया। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन है, m इज इक्वल टू वेट कितना है, व्हाट इज द वेट, 10 ग्राम्स, व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ओके 10 over 180, और नेक्स्ट 1000 बाय 90। चलो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो आप थोड़ा। ओके, 2 के टेबल से जा रहा है, 2 5 10 हो गया, और 2 9 C 18 हो गया, 10 into 5 50 है, 9 9 81 हो गया, ये 50 by 81 करो, you will get the answer. This is about the molality of 10% glucose solution. After that, mole fraction, mole fraction. Okay, what is the mole fraction? It is the ratio of number of moles of one component to the number of moles of all components present in the solution. Okay, what is the mole fraction? It is the ratio between number of moles of one component to the number of moles of all components present in the solution is called as mole fraction. मोल्स का रेशियो है, जिसका मोल फ्रैक्शन मालूम करना चाह रहे हैं उसके मोल नंबर्स को ऊपर डाल लेना, टोटल कंपोनेंट के मोल्स को नीचे डाल लेना, तो ये जो रेशियो आ रहा है उसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 98% H2SO4 सॉल्यूशन, 98% H2SO4 सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन मालूम करो बोल रहा है। एक क्वेश्चन है, a sucrose in water is labeled as, sucrose in water is labeled as 20% W by W. What is the mole fraction? What is the mole fraction of each component बोल के पूछ रहा है। तो ये दो क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन के रिलेटेड के, ये दो रिवाइज कर लीजिए आप। इसमें से एक मैं करा रहा हूँ, H2SO4, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AX है और ये N है, ये N है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस क्या करना, दो कंपोनेंट्स है ना भाई इसके अंदर, तो दैट इज द वाटर ले लेना, ये H2O। तो यहाँ बाजू क्या करेंगे अपन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकालना, NH2SO4। हाउ यू विल गेट दिस नंबर ऑफ मोल्स, वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट, 98 by 98, so 98 by 98 you will get the 1, weight is the 98 and its molecular weight is also 98, so number of moles of H2SO4 is 1. Next, number of moles of water H2O, what is the weight, 98 में बाद में बच गया, सो कितना है, 98 को 2 मिला तो ये 100 हो जाता है, परसेंट बन गया बोले से। तो कभी भी ये वेट ऑफ क्या रहता भाई, ये ऊपर वाला सोल्यूट नीचे वाला सॉल्वेंट रहता है, ऐसा ही लेना,
98 वो हो गया तो ये 2 है, और द रिमेनिंग इज मॉलिक्यूलर वेट इसका 18। तो यहाँ पे क्या हो गया है, 1/9 है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, 1+1 तो एलसीएम लेके अपन करें तो इसको क्या होता है भाई, ये 9/10 आता है, ये 9/10, और 9 को जब 10 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या आएगा भाई, 0.9 आएगा ये। सो दिस इज योर आंसर, 0.9 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। दिस इज अबाउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। YC नंबर ऑफ कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज बोल रहा, मैं फॉर्मूला डाल के छोड़ रहा हूँ, प्रैक्टिस कर लीजिए आप। एक्स सुक्रोज इज इक्वल टू क्या करना भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये ले लेना। ऐसी करना, ऐसी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज को पहले निकाल लेना। तो 20 बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट है सुक्रोज का, C12H22 वो 11 340 आता मॉलिक्यूलर वेट, तो उससे जो है वो करना, डिवाइड कर लेना, तो फिर जो भी आता उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या है भाई, NH2, तो ये 20 हो गया, तो ये 80/18 करिए आप, जो भी आ गया 4.4 समथिंग आता उसको इधर डाल लीजिए आप। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर लिए, यू विल गेट दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज, फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर फॉर्मूले से यूज करना, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द मोल फ्रैक्शन का रिवीजन है, प्रैक्टिस करिए आप एक बार घर में। नाउ नेक्स्ट वन, इस चैप्टर से और एक जो क्वेश्चन है वो रॉल्ड्स लॉ के रिलेटेड का क्वेश्चन है। रॉल्ड्स लॉ, व्हाट इज रॉल्ड्स लॉ भाई? रॉल्ड्स लॉ इज नथिंग बट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। The relative lowering of the vapor pressure of a solution containing non-volatile solute, ये relative lowering of vapor pressure है भाई, RLVP बोल के लिखते हैं इसको, this is RLVP। The relative lowering of vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute present in that solution। ये इक्वेशन है, ये रॉल्ड्स लॉ का इक्वेशन है। BSAQ में पूछा तो ये डेफिनेशन लिखना, P0 minus PS by P0, that is mean, what is the meaning of this? This is the relative lowering of vapor pressure equal to the mole fraction of the solute present in that dilute solution. This is the definition of Raoult's law. Now next, how molecular weight is related to this RLVP अगर पूछ लिया तो how the molecular weight of the substance can be calculated with the help of the Raoult's law बोले तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना है आपको। कैसा करना है, रिलेशनशिप बताने के वास्ते, P0 minus PS by P0 is equal to एक्सेस की जगह जब से मैं लिखा सो मोल फ्रैक्शन, फिर NS by नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट डाल लेना। तो इट इज एप्लीकेबल फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन, देयरफॉर NS is very less when compared with the N0, therefore you can neglect this NS value from this denominator. So P0 minus PS by P0 is equal to NS by N0 आता हूँ, और then P0 minus PS by P0 is equal to NS की जगह वेट by molecular weight ले रहा हूँ, A by M ले रहा हूँ, this is the related to the solute, and B by N0 की जगह weight of solvent by molecular weight of the solvent, ऐसा ले ले रहा हूँ। तो इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करा मैं, तो P0 minus PS by P0 is equal to क्या था, A by M। So this is the weight of solute, this is the molecular weight of solute into W by V, molecular weight of the solvent and weight of solvent, and this is the molecular weight of solvent। इस तरीके से चलो, अब इसमें क्या मालूम करो बोल रहा, M मालूम करो बोल रहा, मॉलिक्यूलर वेट, तो M इधर आ गया, तो इक्वेशन क्या बनने वाला है, देखिए इक्वेशन A इंटू W इंटू P0 ऊपर आ गया, M को इधर ले लिया तो मैं P0 माइनस PS को इधर लिख लिया, नीचे इस तरफ नीचे into B, इस तरीके से molecular weight can be calculated with the help of the Raoult's law. So this is about the
how the molecular weight of the unknown substance is calculated with the Raoult's law and definition of Raoult's law. Now then, the solutions which obeys Raoult's law are called as ideal solution, which does not obey the Raoult's law are called as non-ideal solutions. What are ideal solutions? भाई देखिए, Raoult law से कैलकुलेट करे सो वैल्यू कुछ भी रहने दो, 16 mmHg रहने दो, 16.4 ले लिया मैं, तो एक्सपेरिमेंट करके देखा तो पीएस वैल्यू एग्जैक्टली उतनी आ रही, तो ये सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को ओबे कर रहा बोल के बुला लेते हैं अपन, दिस ओबेज द राउल्ट्स लॉ. If the experimentally calculated value, this is the experimental value is 6.2 है और राउल्ट लॉ से कैलकुलेट करे वैल्यू 6.4 है, ये वैल्यू कम है तो इसको क्या बोलते हैं भाई? नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ बोलते हैं. राउल्ट लॉ की ज्यादा है, इससे कम रहने से नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ बोलते हैं. Next, what is the positive deviation? Experimental value is more than 16.8 ले लिया, राउल्ट लॉ से कैलकुलेट करे सो पीएस वैल्यू 16.4 है, तो ये वैल्यू ज्यादा रहने से इसको क्या बोलते बोले तो इट इज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ बोलते हैं. So ये क्यों होता है? How positive and negative deviations are happened means you see that ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है ए और मैं इसमें क्या करा, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स को मिला लिया, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स को बी से लिख रहा हूँ मैं. When solute molecules are placed in this solvent, when solute is dissolved in the solvent, there are interactions between the AB are developed. थोड़े AB interactions आ जाते. If the interactions between AB are more, अगर AB के बीच में interactions ज़्यादा है तो क्या होता? evaporation process decrease होता, vapor pressure कम होती. If the interaction between AB are more, if the interactions between these two are more between the solvent and solute, particles are more, than this case vapor pressure decreases. तो क्या बोलते हैं भाई? नेगेटिव डिविएशन बोल के बुलाते हैं. इफ सोल्यूट इज एडेड टू दिस सॉल्वेंट, वही सोल्यूट को मैं क्या करा भाई, ओके, और एक एक ले लिया मैं, सोल्यूट को सॉल्वेंट को ऐड कर लिया मैं, बी है, ओके, इसको मैं इससे ऐड करा तो इंटरैक्शंस ए बी में जो इंटरैक्शंस है वो वीक है समझिए, तो क्या होता भाई? एवापोरेशन इंक्रीज हो जाता और वेपर प्रेशर वैल्यू इंक्रीज होती. वेपर प्रेशर वैल्यू इफ इंक्रीजेस, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव डिविएशन बोल के बुलाते हैं. और यहाँ पे जो ग्राफ उतार रहा हूँ मैं नेगेटिव में, देखिए आप ग्राफ ऐसा उतारना विद दी एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0. अब ऐसा किस्म का ग्राफ आता, नेगेटिव डिविएशन मिले तो आप ऐसा लेना, ओके. अगर पॉजिटिव डिविएशन रहे तो ये ग्राफ एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स ए इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1 रहा तो देखिए ऐसे लाइंस डाल लेना, पॉजिटिव डिविएशन में ऐसा डाल लेना. सो दिस इज अबाउट द पॉजिटिव डिविएशन ग्राफ. सो दिस इज अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन एंड राउल्ट्स लॉ, इसके बारे में है. नाउ नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ द वेपर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ द राउल्ट्स. लाइक दो प्रॉब्लम्स करा लिया बेटा, वो प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लीजिए आप, राउल्ट्स लॉ के प्रॉब्लम्स. तो ये चैप्टर में ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एसएक्यू में, और वीएसएक्यूज में कौन से है ये चैप्टर के क्वेश्चंस, विच आर द इम्पोर्टेंट वीएसएक्यूज इन दिस चैप्टर. सो फर्स्ट वन इसमें राउल्ट्स लॉ का डेफिनेशन, और ये नेक्स्ट वाला मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन, मोल फ्रैक्शन डेफिनेशंस. और नेक्स्ट isotonic solutions, it is the important one among all this. Next one Henry's law. Next one, what is the osmotic pressure क्या है? ये डेफिनेशन से एक आता, तो इसमें यहाँ तक समझा दिया मैं आपको, ये सब आ गए आप. Isotonic solutions whose osmotic pressure is same are called as isotonic solutions. जिसका osmotic pressure same रहता हो तो वैसे solutions को, iso means same, tonic means what? Osmotic pressure. Solutions with same osmotic pressure are called as isotonic solutions.
Example for the isotonic solution, blood iron saline is the example for the isotonic solution. These are the examples. Okay, now next, Henry's law. Solubility of the gas in the liquid, this is the gas in the liquid, is directly proportional to the solubility is directly proportional to the pressure over the gas present on the surface of the liquid. This pressure of the gas is directly proportional to what mole fraction of the gas present in that solution. So indirectly solubility of the gas is directly proportional to what mole fraction of the solute present over the solution. जो gas है वो gas की mole fraction के ऊपर solubility of the gas in a liquid depend होती. It is called as Henry's law. So this is the Henry's law definition. Now next about the osmotic pressure. What is the osmotic pressure? Osmotic pressure is nothing but this here. ऑस्मोसिस किसको बोलते हैं? ओके, ये सॉल्ट वाटर एक बाजू ले लिया या जनरल वाटर ले लिया, तो थोड़ी देर के बाद में इन दोनों के बीच में मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया, तो थोड़ी देर के बाद में ये जनरल वाटर के मॉलिक्यूल सॉल्ट वाटर में आते, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता, तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होता, इसको क्या बोल के बुलाते? ऑस्मोसिस बोल के बुलाते, ऑस्मोसिस. Flowing of the molecule from lower concentration to higher concentration through the membrane is called as osmosis. In order to prevent this osmosis, we are applying the pressure. Pressure यहाँ पे piston से pressure apply कर लिया मैं, तो ये molecules इधर आना बंद हो जाता. तो in order to prevent this osmosis, how much pressure is applied? The pressure is required to prevent the osmosis is called as osmotic pressure. चलिए, ये थोड़े इम्पोर्टेंट VSAQ से ये चैप्टर से. नेक्स्ट थर्ड चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से? थर्ड क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, यही ज्यादा पूछ रहा. मॉलिक्यूलरिटी ये क्वेश्चन है. राइट द पोस्टुलेट्स इन द कोल्यूशन थ्योरी. कोल्यूशन थ्योरी, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी एंड कोल्यूशन थ्योरी के पोस्टुलेट्स है भाई. ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इक्वेशन बोल के है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट बोल के है, वो भी और एक क्वेश्चन है, मैं समझाता हूं. मैं ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, इसके डेफिनेशन से लास्ट क्लास में मैं पढ़ाया था डिटेल से, फिर भी थोड़ा रिवाइज कर ले रहा हूँ, शॉर्ट में रिवाइज कर दे रहा हूँ आज की क्लास में. पूरे क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन हो रहा, यूजफुल रहता. थोड़ा देखिए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ऑर्डर इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, दैट इज रिटन विद द एन. और व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर द ऑर्डर? इट इज द सम ऑफ द पावर्स. इट इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द concentration, पावर्स ऑफ द concentration of what? Of reactants in a rate law equation. In rate law equation is called as order of the reaction. For example, a plus b gives the product है भाई. एक्सपेरिमेंट करके देखा तो a पावर क्या आया था? 1 आया था. और एक्सपेरिमेंट करके देखा तो b पावर क्या आया? 1 आया. व्हाट इज द ऑर्डर बोले तो सम ऑफ द पावर्स मिला ले रहा हूँ. 1 + 1 इज इक्वल टू 2. इट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है. Okay, n is equal to 2. Sum of the powers of the concentration is called as the order of the reaction. और जीरो ऑर्डर को एग्जाम्पल बोले तो H2 + Cl2 HCl. और फर्स्ट ऑर्डर को एग्जाम्पल बोले तो आप N2O5 gives rise to N2O4 + half O2, ऐसा ये डाल लीजिए आप. नहीं तो H2O2 gives rise to H2O + half O2, ऐसा डाल लीजिए. So these are the examples for the फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. थोड़े ये मैं समझाया बेटा. मैं एग्जांपल्स भी देखो आप. व्हाट इज द ऑर्डर? राइट एग्जांपल्स बोले तो 1-2 रिएक्शंस लिखना है एग्जांपल्स में. दिस इज अबाउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. नेक्स्ट, व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन. मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर वैल्यूज आर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज एंड ऑर्डर वैल्यूज समटाइम्स मे बी नेगेटिव भी हो सकते, जीरो भी हो सकते, पॉजिटिव भी हो सकते. और मॉलिक्यूलरिटी में कहाँ से आया भाई मॉलिक्यूलरिटी? ये देखिए, ए गिव्स द प्रोडक्ट डी डाल लिया, तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ डी सेवरल स्टेप्स आर देयर, दैट इज कॉल्ड एज द
we are seeing how many steps are there for the formation of the stable product. एक प्रोडक्ट आने के अंदर कितने स्टेप्स है देख रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं मैकेनिज्म. समझो ये 10 मिनट में हो रहा, ये 20 मिनट में हो रहा और ये 5 मिनट में हो रहा. तो ये स्लोएस्ट स्टेप है सेकेंड वाला. सेकेंड स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप, दैट इज कॉल्ड एज द RDS, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है ये. इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटेड वो देख लेना, आयॉन्स आर एटम्स, और मॉलिक्यूल्स कितने पार्टिसिपेट हो रहे हैं वो देखना है. दैट इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलरिटी. तो डेफिनेशन क्या करना भाई, ये द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयॉन्स और एटम्स are participated in the what slowest step of mechanism. Slowest step of mechanism is called order of the reaction. Order होगा, is called as molecularity of the reaction. So this is the definition of the molecularity. Molecularity values are the theoretical values. Molecular values are always positive integral values 1 2 3 ऐसा हो सकता. ये molecularity के values 0 ऐसा माइनस में नहीं रहते, एटलीस्ट 1 molecule 2 molecule ऐसा पार्टिसिपेट होते रहते रिएक्शंस में. दिस इज अबाउट द ऑर्डर एंड molecularity. तो बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन को एग्जांपल लिखो बोले तो वही लिख सकते हैं आप, इससे पहले पढ़ लिए. N2O5 gives rise to N2O4 plus half O2 ऐसा है. दिस इज कॉल्ड एज द यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. इसी बाइमॉलिक्यूलर ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन लास्ट क्लास में मैं प्रीवियस क्लासेस में एग्जांपल्स दिया था, अभी भी एक एग्जांपल समझाया हमें. सो दिस इज अबाउट द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन. नेक्स्ट व्हाट इज द सूडो ऑर्डर रिएक्शन, किसको बोलते हैं सूडो ऑर्डर. ये VSA क्यों है, सूडो ऑर्डर रिएक्शन. व्हाट इज द सूडो ऑर्डर रिएक्शन, देखिए बेटा, हुज मॉलिक्यूलरिटी वैल्यू इज 2 एंड ऑर्डर वैल्यू इज 1, उसको बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं. ओके, हुज मॉलिक्यूलरिटी वैल्यू इज 2 and order value is 1, the type of the reactions are called as the pseudo order reactions. Okay, hydrolysis of the ester C2H5 COOCH3. Okay, so hydrolysis of this ester in the acidic media gives the C2H5OH plus CH3COOH. Okay, इसकी मॉलिक्यूलरिटी वैल्यू 2 रहती है, ऑर्डर वैल्यू 1 रहता. तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं बोले तो सूडो ऑर्डर रिएक्शंस बोल के बुलाते. whose order value is 1 and molecularity is 2, such type of the reaction. Simple ऐसा लिख दे सकते आप. Okay, whose order value is 1 and molecularity is 2, such type of the reactions are called pseudo order reactions. Example to the pseudo order reaction is the hydrolysis of ester. We'll get the alcohol and carboxylic acids. This is the example for the pseudo order reactions. Now next, what is the effect of the temperature? Temperature से reaction क्या होता, ये थोड़ा देख लीजिए आप. What is the effect of temperature and catalyst on the velocity of the reaction? देखिए बेटा, कैटलिस्ट का इफेक्ट समझा रहा हूँ. विदाउट कैटलिस्ट देखिए एक्टिवेशन एनर्जी मतलब इतनी होना था, एनर्जी ऑफ जनरल मॉलिक्यूल्स इतनी, एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है भाई. इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी. और ये क्या है, एनर्जी ऑफ जनरल मॉलिक्यूल्स है. विदाउट कैटलिस्ट क्या होता बोले तो ये पीक जरा ज्यादा रह जाता. अगर कैटलिस्ट मिला दिए ना तो ये पीक क्या करता बोले तो थोड़ा डिक्रीज होता. तो कैटलिस्ट क्या करा भाई, दैट फाइंड्स अनदर पाथवे इन विच एक्टिवेशन एनर्जी कम रहे सो पाथवे को फाइंड करता. दिस इज द रिएक्शन विथ कैटलिस्ट, दिस इज द रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट. In this activation energy is more, in this activation energy is less with the catalyst. So catalyst finds other pathway in which activation energy is less. As a result of that, the velocity of the reaction, rate of the reaction increases. That means by addition of the catalyst क्या होने वाला है, the reaction 20 या 25 मिनट में होने वाला रिएक्शन 5 मिनट में खत्म हो जाता. तो रिएक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है कैटलिस्ट. कैटलिस्ट इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन. दिस इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ
effect of catalyst on the rate of the reaction or velocity of the reaction. Now next about the effect of the temperature on the velocity of the reaction. If the temperature is increases, collision between the molecules increases, kinetic energy is also increases. Whatever it may be, if you are increasing the temperature, rate of the reaction is increases. That is given by the Arrhenius equation. K is equal to A e power minus EA by RT. Okay, इसमें क्या रिलेशनशिप है टेम्परेचर और रेट ऑफ द रिएक्शन के बीच में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. Rate of the reaction is increases with increase in the temperature. Then after that, it is observed that rate of the reaction doubles and triples by increasing in 10 degrees. हर 10 degrees को rate of the reaction मतलब 10 degrees बढ़ा रहा है. इससे पहले 25 डिग्री C के पास कर रहे थे, फिर 35 के पास कर रहे हैं. तो rise in each 10 degrees Celsius क्या होने वाला है? Rate of the reaction is approximately doubles or triples. K T degree C plus 10 degree C by K T degree C. Rate of the reaction is approximately double or triple. It is called as temperature coefficient बोल के बुलाते हैं. Effect of temperature बोले तो ये दो चीज़ें लिखना. Rate of the reaction is increases with increase in the temperature. Now that means rate of the reaction, specific rate of the reaction is directly proportional to the temperature. As the temperature increases, velocity of the reaction increases. That is given by the Arrhenius equation. And it is observed that a rise in each 10 degrees rate of the reaction is approximately doubles or triples. So this is about the effect of the temperature on the rate of the reaction. So these are the some important questions. Now और एक है भाई एक हाफ लाइफ पीरियड के बारे में. व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड? VSAQ में आ सकता. तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द 50% ऑफ द रिएक्शन, हाफ ऑफ द रिएक्शन, 50% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है? दैट इज कॉल्ड एज द हाफ लाइफ पीरियड. देखिए K1 इज इक्वल टू 0.693 बाई यहाँ पे T हाफ आता है. ये इक्वेशन है, ये K1 का इक्वेशन. अब आपको क्या करता, T हाफ की वैल्यू 10 दे रहा, आपको K1 मालूम करो बोल रहा. तो दैट इज द वन क्वेश्चन. 0.693 बाई क्या करेंगे आप? ये डाल देता, 10 सेकेंड टाइम दे दिया तो आपको क्या आएगा? 0.0693 आएगा. एक VSAQ है ये. अगर क्वेश्चन पूछा व्हाट इज हाफ लाइफ and the half life of a first order reaction is 10 seconds. Now then what is the K1 बोले तो ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, you will get the 0.693. that is your answer. 0.693 by 10, 0.0693. so this is the these are the some important questions in the chemical kinetics. Now next about the electrochemistry के important questions है. तो नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं. बाकी के बच्चे से जल्दी रिवाइज कर ले रहा हूँ फिर से एक बार. तो नेक्स्ट क्लास से यहाँ से बचे हुए रिवाइज करता हूँ VSAQ और SAQ के साथ में, और लास्ट में LAQ रिवाइज करता हूँ इंशाल्लाह.